Hello students, I am Kavita Sharma here to teach you Economics Intermediate First Year Economics English Medium. Today we learn Unit 2 Consumer Behavior. In this unit we learn cardinal utility, ordinal utility, total utility, marginal utility and law of diminishing marginal utility. First, I'll teach you what is utility. Consumption is the basis for entire economic activity. In order to satisfy wants, one has to consume goods and services which have utility. What is consumption? Everybody wants to satisfy his wants so that he use goods and services to satisfy his or her wants. So, utility is a capacity or power of a commodity which satisfy the human want. It means utility क्या है? Utility एक क्षमता या शक्ति है जो वस्तु के अंदर होती है, कमोडिटी के अंदर होती है, जो ह्यूमन बीइंग्स के वांट्स या इच्छाओं को सेटिस्फाई पूरा करती है. इसे हम यूटिलिटी कहते हैं. The aim of this unit is to study the utility approach and the consumer behavior with the help of the law of diminishing marginal utility, the law of equimarginal utility, and the indifference curve analysis. Now, let us about utility. The concept of utility was introduced in economic thought by Evans in 1871. 1871 में जेवान्स ने हमें यूटिलिटी का विचार दिया. In a general sense, utility is the want satisfying power of a commodity or service. सामान्यतः उपयोगिता या यूटिलिटी का मतलब मानव की जरूरतें पूरी करने की क्षमता जो वस्तु या सेवा में है, उसे हम यूटिलिटी कहते हैं. In economic sense, utility is a psychological phenomenon. It is a feeling of satisfaction a consumer derives from the consumption of a commodity. Utility has nothing to do with usefulness. These both are different. Economic sense में utility क्या है? यह एक साइकोलॉजिकल అంటే मनोवैज्ञानिक तथ्य है, मनोवैज्ञानिक विचार है जो गुड्स और सर्विसेज को यूटिलाइज करके या कंज्यूम करके कंज्यूमर फील करता है. एक कैसे मिलती है? जब उपभोक्ता या व्यक्ति किसी वस्तु को, गुड्स या थिंग्स को यूटिलाइज करता है, कंज्यूम करता है, तब हमें सेटिस्फैक्शन फीलिंग होता है. यही फीलिंग यूटिलिटी है इन इकोनॉमिक सेंस. यूटिलिटी इज नथिंग टू डू विथ यूजफुलनेस. అంటే यूजफुलनेस एंड यूटिलिटी इज बोथ आर डिफरेंट. यूटिलिटी और उपयोगित यूजफुलनेस का संबंध नहीं है. जैसे शराब हमारे लिए अच्छी नहीं होती, लेकिन जिस शराबी को शराब बहुत अच्छी लगती है. A commodity may satisfy a human want, but it may not be useful. Utility is subjective concept. It may differ from person to person, place to place, and time to time. उपयोगिता या यूटिलिटी व्यक्ति, जगह और समय के साथ पर्सन टू पर्सन, टाइम टू टाइम एंड प्लेस टू प्लेस चेंज होते रहती है. एक चीज जो हमारी जरूरत हो सकती है, दूसरे की जरूरत नहीं हो सकती है. जैसे एक पढ़ने वाले स्टूडेंट के लिए पेन, बुक, टेक्स्ट बुक आर यूजफुल, लेकिन जो स्कूल या कॉलेज नहीं जाता है उसके लिए ये थिंग्स की कोई भी आवश्यकता नहीं है, ये जरूरत नहीं है. इसीलिए यूटिलिटी पर्सन टू पर्सन चेंज होती रहती है. There are two different approach regarding the measurement of utility. First is cardinal utility and second one is ordinal utility. Cardinal utility. Cardinal utility says that utility is measurable quantitatively in terms of utile. Cardinal utility means
This approach was given by Jeon, but followed by Marshall. In this concept, cardinal utility says that satisfaction which derives from the consumed units of commodity can be measurable. Cardinal utility says that utility is measurable quantitatively in terms of util. For example, a person can say that he derives utility equal to 10 utils the consumption of 1 unit of a commodity. मैं कह सकती हूँ कि एक कप चाय पीने से मुझे 10 यूटिल्स के बराबर यूटिलिटी मिली। मतलब यानी हम यूटिलिटी को संख्या में नंबर के रूप में माप सकते हैं और दिखा सकते हैं, जैसे कि 1, 2, 3, 4 एटसेट्रा। अल्फ्रेड मार्शल फॉलोड दिस अप्रोच। मार्शल ने इस विचार को अपनाया। यूटिलिटी, ऑर्डिनल यूटिलिटी। Utility is ordinal in the sense that utilities derived from the consumption of commodities cannot be measured quantitatively but can be compared by giving grants. In this approach, ये अप्रोच क्या बोलता है कि यूनिट्स को, नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ कॉमोडिटी और थिंग्स को जब हम कंज्यूम करते हैं, उपयोग में लाते हैं, तो उससे जो हमको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है उसको हम माप नहीं सकते, केवल उसको हम रैंक्स दे सकते हैं, उसको ऑर्डर में हम अरेंज कर सकते हैं, लेकिन उसको हम माप नहीं दे सकते। इट मीन्स दैट द यूटिलिटीज ऑब्टेन्ड बाय द कंज्यूमर फ्रॉम डिफरेंट कमोडिटीज कैन बी अरेंज इन एन ऑर्डर सच फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एटसेट्रा। द सेकेंड इज सोल्ड, दिस इज more useful for consumer than first. This number can tell us that the second number is more than the first number. J.R. Hicks and J.R. Allen have used the ordinal approach. The indifference curve analysis is based on the ordinal utility approach. J.R. Hicks, Allen, ये जो आधुनिक अर्थशास्त्री मॉडर्न इकोनॉमिक्स है, इन्होंने इस विचार को, कॉन्सेप्ट को अपनाया है और इनका कहना है कि यूटिलिटी एक साइकोलॉजिकल फेनोमेनन है, उसको केवल फील किया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है, लेकिन इट कैन नॉट बी एक्सप्रेस विद अ न्यूमेरिकल नंबर। उसको हम संख्या के रूप में नहीं समझा सकते, नहीं दिखा सकते। एंड नाउ लेट अस गो इन टोटल यूटिलिटी। व्हाट इज टोटल यूटिलिटी? टोटल यूटिलिटी इज द टोटल amount of satisfaction which is a person gets from the consumption of all units of the commodity. एक समय में एक व्यक्ति एक वस्तु की कितनी यूनिट को, यानी एक कॉमोडिटी की टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स कितना उसने यूज किया, कितना वो काम मिलाया, वो सबसे मिलकर जो उसको टोटल यूटिलिटी मिलती है, कुल उपयोगिता टोटल यूटिलिटी मिलती है, उसको हम टोटल यूटिलिटी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द कंज्यूमर गेट्स 20 यूनिट्स ऑफ यूटिलिटी फ्रॉम द फर्स्ट एप्पल and 15 utils from the second apple, then the total utility of 2 apples is 20 plus 15 is equal to 35 utils. यदि मैं एक कप चाय पीती हूँ तो मुझे 20 यूटिल्स के बराबर यूटिलिटी मिल रही है। अब मैंने दूसरा कप चाय पिया तो मुझे 15 यूटिल्स के बराबर यूटिलिटी मिल रही है। तो पहले कप से कितनी यूटिलिटी मिली? 20, और सेकंड कप से कितनी यूटिलिटी मिली? 15। तो टोटल हमें कितनी यूटिलिटी मिली? 35 यूटिल्स के बराबर हमको टोटल यूटिलिटी मिली। Thus total utility is a function of total quantity, यानी कुल कितना क्वांटिटी में हमने कंज्यूम किया उसका फंक्शनल रिलेशन ही टोटल यूटिलिटी है। टोटल यूटिलिटी इज TU is equal to F into Q. There TU is total utility, F is functional relation, and Q is quantity consumed. Marginal utility. It is the additional made to the total utility by consuming one more unit of the commodity. एक और
वस्तु की एक इकाई का और एक एडिशनल यूनिट ऑफ द कमोडिटी व्हेन वी कंज्यूम, then the additional weight to the total utility. What is the additional to the total utility is called marginal utility. Suppose one apple gives 20 utils and 2 apples gives 35 utilities of utility. That means the marginal utility of the second apple is 15 utils. That is 35 minus 20 is equal to 15. This is called marginal utility. It can be expressed as mu is equal to delta TU, मतलब change in the total utility, delta divided by delta Q, change in the quantity. Okay, समझिए, यदि जैसे मैंने पहले आपको उदाहरण दिया, मैंने 1 कप चाय पी, तो मुझे 1 कप चाय पीने से 20 यूटिल्स के बराबर उपयोगिता मिलेगी। अब मैंने 2 कप चाय पी तो मुझे टोटल यूटिलिटी 35 के बराबर मिली। तो दूसरे कप चाय से मुझे कितनी यूटिलिटी या उपयोगिता मिली? मैंने क्या किया? टोटल यूटिलिटी ऑफ सेकेंड यूनिट, टोटल यूटिलिटी ऑफ सेकेंड यूनिट, टोटल सेकेंड यूनिट इज 35 एंड टोटल यूटिलिटी ऑफ 1 यूनिट, मतलब इसको हम और कैसे दिखा सकते हैं? MUN is equal to TUN minus TUN minus 1, यानी यदि हमको दूसरे यूनिट की मार्जिनल यूटिलिटी पता करना है, जानना है, तो हमें क्या करना होगा? MU2 सेकेंड यूनिट की मार्जिनल यूटिलिटी पता करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? MU2 इज इक्वल टू TU2, जो सेकेंड यूनिट का टोटल यूटिलिटी कितना है? 35 माइनस TUN, मतलब कितना टोटल हम कंज्यूम किए थे, यहाँ पर 2 किए थे, 2 माइनस 1 कितना हो गया? पहला वाला, तो पहले से हमको कितना मिला था? 20, तो 35 माइनस 20 is equal to 15. 15 is the marginal utility. By adding the all marginal utilities of different units of the commodity, we get total utility. यदि हम जितनी भी यूनिट्स को कंज्यूम कर रहे हैं वो सब यूनिट से मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी को ऐड करते जाते हैं, जोड़ते जाते हैं, तो हमें मार्जिनल यूटिलिटी से क्या पता चल जाता है? इसको ऐड करते करते टोटल यूटिलिटी। यदि हम जितने यूनिट्स ऑफ कमोडिटी को कंज्यूम किए हैं उनसे मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी को ऐड करते जाते हैं, 1 by 1 ऐड करते जाते हैं, then we got टोटल यूटिलिटी, तो हमें कुल उपयोगिता पता चल जाती है। अब मैं आपको इस चैप्टर से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ये जो लॉ है, ये नियम है, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ह्यूमन बिहेवियर एज अ कंज्यूमर बिहेवियर, उस कॉन्सेप्ट से या उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, से ध्यान देकर आपको समझना होगा। द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, दिस वाज ओरिजिनली एक्सप्लेन्ड बाय एच गोसन इन 1854। यह नियम जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का नियम है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी मतलब जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो घटते जा रही है, कम होते जा रही है, डिक्लाइन होते जा रही है, ये लॉ हमको सबसे पहले एच.एन. गोसन ने 1854 में दिया था। जेवंस कॉल्ड इट एज गोसन्स ट्रू लॉ, बट अल्फ्रेड मार्शल पॉपुलराइज्ड दिस लॉ, ही एनालाइज्ड इट इन अ साइंटिफिक मैनर। जेवंस ने इसको गोसन का पहला नियम कहा। जेवंस कॉल्ड इट एज गोसन्स ट्रू कॉल, फर्स्ट लॉ, बट अल्फ्रेड मार्शल ने इसको पॉपुलराइज किया, फेमस किया और इसको साइंटिफिक वे में एनालाइज किया, विश्लेषण इसका वैज्ञानिक तरीके से किया। द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इज बेस्ड ऑन द फैक्ट that a particular bond is satiable.
ये लॉ किस पर बेस्ड है? ये लॉ बेस्ड है, आधारित है कि ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, लेकिन ये अनलिमिटेड वांट्स में से भी पर्टिकुलर वांट्स को हम इजीली सेटिस्फाई कर सकते हैं। इसी फैक्ट पर बेस्ड है यह लॉ। दिस लॉ एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन द क्वांटिटी ऑफ अ गुड कंज्यूम्ड एंड द यूटिलिटी डिराइव्ड। किस पर बेस्ड है? दो बातों का रिलेशन बताता है। फर्स्ट, क्वांटिटी ऑफ गुड्स कंज्यूम, कितनी क्वांटिटी में हमने गुड्स को कंज्यूम किया, काम में लिया, एंड द यूटिलिटी डिराइव्ड, और उससे हमको कितनी उपयोगिता मिली, कितनी यूटिलिटी मिली। तो ये लॉ हमको दो बातों के बीच में रिलेशन बताता है। कंज्यूम गुड्स, नंबर ऑफ कंज्यूम यूनिट्स ऑफ गुड्स, एंड द यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम देम, उनसे हमको कितनी उपयोगिता मिल रही है। If a consumer goes on consuming more and more units of a commodity, the additional utility he derives from the additional units of the commodity goes on diminishing. यदि कंज्यूमर वन बाय वन उसको कंज्यूम करते जाता है, यूनिट्स ऑफ कमोडिटी, एक वस्तु की, एक गुड्स की इकाइयों को वो कंटिन्यूअस वन बाय वन यदि कंज्यूम करता जाए, तो ही डिराइव फ्रॉम एडिशनल यूनिट, अगली इकाई जो एडिशनल, वो एक्स्ट्रा वन बाय वन यूनिट कंज्यूम कर रहा है, उस कमोडिटी से मिलने वाली जो यूटिलिटी है वो कंटिन्यूअस डिक्लाइन होती जाती है, गिरते जाती है, डिमिनिश होती जाती है। यही यह नियम है, यही यह लॉ है। मार्शल्स डेफिनेशन, the additional benefit which a person derives from a given increase of his stock of a thing diminishes with every increases in the stock that he already has. मार्शल ने इसकी परिभाषा दी, डेफिनेशन दी, क्या दिया है कि एडिशनल बेनिफिट कंज्यूमर को जो मिलेगा वो कैसा डिराइव होगा, डिराइव यानी मिलेगा, प्राप्त होगा, वो कैसा मिलेगा? यदि उसके पास जो स्टॉक है, गिवन इंक्रीज ऑफ हिज स्टॉक, उसके पास किसी वस्तु का, गुड्स का, कमोडिटी का स्टॉक है, भंडार है, उसमें यदि वो बढ़ाते जाता है, उसको वन बाय वन यूनिट के साथ इंक्रीज करते जाता है, स्टॉक को, भंडार को बढ़ाते जाता है, तो प्रत्येक अगले जो आने वाला नेक्स्ट इंक्रीज हो रहा यूनिट, उससे मिलने वाली जो यूटिलिटी है वो कैसी हो जाती है? गिरने लगती है। स्टॉक ऑफ अ थिंग डिमिनिशेस, जो यूटिलिटी देखो, the additional benefit which a person derives from a given increase of his stock of a thing diminishes with every increase in the stock that he already has. Conjunctions of the law, देखिए, cardinal utility approach regards with microeconomic concept, इसका संबंध सूक्ष्म अर्थशास्त्र, माइक्रो इकोनॉमिक सूक्ष्म अर्थशास्त्र से रिलेशन है इसका, इसीलिए इसमें कुछ कंजंक्शंस होती है। जैसे हम लोग गणित में कुछ पढ़ते हैं तो मान्यता मान लेते हैं, ऐसे ही इसमें मान्यता, माना कि, जब की, ऐसे इसमें हम कुछ कंजंक्शंस मानते हैं। ये क्या है? फर्स्ट है रैशनैलिटी, रैशनैलिटी मतलब इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंसी, इंटेलिजेंट मान लो। द कंज्यूमर बिहेव रैशनली इन द सेंस दैट ही सीक्स मैक्सिमाइज सेटिस्फैक्शन, ही वांट्स टू मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन बिकॉज कंज्यूमर इज अ इंटेलिजेंट। फर्स्ट एग्जाम्पल है, ये मान लिए है कि जो कंज्यूम करने वाला कंज्यूमर है वो बुद्धिमान है, इंटेलिजेंट है, और वो अपने सेटिस्फैक्शन को, जो फायदा उसको मिलने वाला उस वस्तु को काम में लेने से, वो ज्यादा से ज्यादा उसको करना चाहता है। कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज सेकंड एग्जाम्पल ऑफ दिस लॉ। ये क्या मान रहे हैं कि ये किस पर बेस्ड है? कार्डिनल यूटिलिटी पर। कार्डिनल यूटिलिटी कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि यूटिलिटी कैन बी मेजरेबल, ओके, उसको हम माप सकते हैं, एंड इट कैन बी एक्सप्रेस इन न्यूमेरिकल नंबर, उसको हम संख्याओं में, संख्या के रूप में हम उसको दिखा भी सकते हैं। इंडिपेंडेंट यूटिलिटी, थर्ड एग्जांपल ऑफ दिस लॉ इज इंडिपेंडेंट यूटिलिटी, दैट इज इट डिपेंड्स ऑन इट्स ओन क्वांटिटी ओनली। मतलब एक यूनिट, एक वस्तु का दूसरी वस्तु की उपयोगिता से लेना देना नहीं है। देयर इज नो रिलेशन बिटवीन द टू कमोडिटी यूटिलिटीज ऑफ द टू कमोडिटीज।
It depends on its own utility. It depends on its own quality. Marginal utility of money remains constant. In this law, one of the exemptions is marginal utility of money remains constant. जो मनी की मार्जिनल यूटिलिटी है उसको हम फिक्स्ड मान लिए, कांस्टेंट मान लिए, वो चेंज नहीं होती है, ऐसा इस नियम में मान लिया गया है। होमोजीनियस गुड्स, होमोजीनियस गुड्स मतलब सेम, गुड्स आर होमोजीनियस in the sense that they are in both quantitatively and qualitatively. दिखने में भी और उसका जो गुण है, क्वालिटी है, दोनों में वो कैसी रहनी चाहिए, यूनिट्स ऑफ कमोडिटी सेम रहना चाहिए। एक ही समय में व्यक्ति एक वस्तु की बहुत सारी इकाइयों को, यूनिट्स को काम में ले रहा है, तो वो सारे यूनिट्स ऑफ कमोडिटी कैसी रहनी चाहिए, सेम। कैसा सेम रहेगा, क्वालिटी में और क्वांटिटी में, दोनों में, वह दिखने में और गुण में, दोनों में, मात्रा में और गुण में, दोनों में वह सेम होना चाहिए। यूनिफॉर्म साइज ऑफ गुड्स। एंड क्या एक और मान्यता है, क्या माने कि जो वस्तु है उसका जो साइज है, आकार है, वो कैसा रहना चाहिए, एक जैसा। एक छोटा और एक बड़ा ऐसा नहीं हो सकता है, वो साइज कैसा रहना चाहिए, एकदम छोटा भी नहीं, एकदम बड़ा भी नहीं। गुड्स शुड बी of suitable size. They should be neither too big or nor too small. Should be identical. वो तो कैसा रहना चाहिए, वो वस्तु का जो आकार है वो एक यूनिफॉर्म साइज में रहना चाहिए और एडिक्वेट साइज में रहना चाहिए, और वो चेंज नहीं होना है, कोई एकदम बड़ा भी नहीं होना है, एकदम छोटा भी नहीं होना है। नो टाइम लैग, जो हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं वो एक्शन है, वो कंटिन्यूस चलना चाहिए। दैट इज देयर इज नो टाइम लैग बिटवीन द कंजप्शन ऑफ वन यूनिट एंड अनदर यूनिट। एक ही वस्तु की नंबर ऑफ यूनिट्स हम कंज्यूम करते हैं एट अ टाइम, कंटिन्यूस, तो उसका क्या एक मान्यता है, क्या माने है कि वो जो टाइम लैग नहीं होना, बीच में एक यूनिट और दूसरे यूनिट को हम कंज्यूम कर रहे हैं, उस कंजप्शन के बीच में टाइम लैग नहीं होना, बीच में अंतर नहीं होना। एक अभी खा रहे, फिर एक रोटी, अभी एक कप चाय पिया, फिर 4 घंटे के बाद दूसरा कप चाय पिया, तो ये नियम नहीं लगेगा। ये क्या माने है कि देयर इज नो टाइम लैग बिटवीन द कंजप्शन ऑफ द वन यूनिट एंड अनदर यूनिट। डिवाइजिबल कमोडिटी, कमोडिटी इज डिवाइजिबल, उसको हम डिवाइड कर सकते हैं। एक जो हम कंज्यूम करते हैं, ऐसा मान लिया गया है इस नियम में कि जो हम कंज्यूम कर रहे हैं कमोडिटी को, उपभोग कर रहे हैं वस्तु की इकाई को, उसको हम स्मॉल स्मॉल यूनिट्स में, छोटे छोटे इकाइयों में बांट सकते हैं। जैसे हम गेहूं लेना चाहते हैं तो हम व्हीट ले रहे हैं या राइस ले रहे हैं, तो जब हम परचेज करते हैं राइस को कंज्यूम करने के लिए, तो जो कंज्यूम करने के लिए हम राइस कंज्यूम कर रहे हैं वो कैसे छोटे छोटे क्वांटिटी में हो सकता है, पाव केजी, हाफ केजी, 1 केजी, जस्ट लाइक कप ऑफ टी, एक फुल कप ऑफ टी ले सकते हैं या हाफ कप ऑफ टी ले सकते हैं। तो ये क्या बोल रहे हैं, जो भी कमोडिटी हम कंज्यूम कर रहे हैं उसको हम छोटे छोटे इकाइयों में डिवाइड कर सकते हैं और कंज्यूम कर सकते हैं। नो चेंज इन कंज्यूमर बिहेवियर, ये भी एक मान्यता है कि जो कंज्यूमर है, उपभोक्ता है, जो व्यक्ति ये कंज्यूम कर रहा है, उसमें चेंज नहीं, क्या क्या चेंज नहीं होना चाहिए, देयर इज नो चेंज इन इनकम, टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर। उसके इनकम में कोई परिवर्तन नहीं आना चाहिए, कंज्यूमर के इनकम लेवल में कोई चेंजेस नहीं आना चाहिए। उसके टेस्ट में, यानी वो क्या चीज पसंद करता है, वो किस चीज को पसंद करेगा, उसमें चेंज नहीं आना है। और प्रेफरेंस किस चीज को वो प्राथमिकता देता है, प्रेफरेंस दे रहा है, सबसे पहले उसको क्या चाहिए, उसमें भी वो चेंज नहीं करता है। और फुल नॉलेज ऑफ द मार्केट, ये क्या है, एक एग्जांपल कि फुल, उस जो कंज्यूमर है उसको मार्केट का पूरा नॉलेज है, फुल नॉलेज ऑफ द मार्केट। कंज्यूमर विल हैव फुल नॉलेज ऑफ मार्केट, उसको बाजार का